Morning students, are you able to listen to me? Class 9th, Yes, ma'am. I'm Hemlata Yadav. I'm taking the chapter 5 today, revision of chapter 5. Cell, because it is going to come in your community test. As in the previous community test, only introduction part was done. So, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद बहुत सारी ऑर्गेनेल्स थी जो रह गई थी और हाफ चैप्टर जो बचा था वो आपके कम्युनिटी टेस्ट में आएगा, तो उसको रिवाइज कर रहे हैं। मुझे बता देंगे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम 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 क्या टिश्यू चैप्टर इज नॉट कमिंग क्यूमुलेटिव? 6th chapter, but it is just started. We have just touched the 6th chapter. That means we have just started it. But the 5th chapter, the second half of the 5th chapter will come. Good morning, ma'am. These are the NCERT solutions. Question number 1 is who discovered cell and how? आपको पता है किसने डिस्कवर किया सेल को और कैसे? Cell was discovered by Robert Hooke. With the help of his self-designed microscope, he examined a thin slice of cork and saw the cork resembled the structure of honeycomb, consists of many compartments. इसमें सेल रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवर। कॉर्क टिश्यू को उसने सबसे पहले देखा था और उसी को उसने उसके कंपार्टमेंट्स को हनीकॉम्ब लाइक हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स थे, उनको उसने सेल बोला। अलग अलग कंपार्टमेंट को एक सेल बोला, ठीक है। ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स डेड सेल थे वो, उनमें सिर्फ सेल वॉल्स। क्लियर? इज इट क्लियर? Cells कैसे Yes, डिस्कवर ma'am. होती है? thin slice of cork tissue से। Why is cell called structural functional component? क्यों बोला जाता है सेल को structural functional component? कोई भी बच्चा इसमें रीड करके बता सकता है मुझे? Read the answer solution. Why the cell is called structural functional unit? Ma'am, because cell is the smallest unit of our life. Cell perform all the functions. The answer is also written here. I want you to read from the screen which is shared. There are various components in the animal and plant cell known as cell organelles. Each kind of cell organelles perform a specific function such as making new material in the cells, release of waste, transportation, etc. Thus, a cell can perform all its function with the help of these organelles. That is why the cell are called structural and functional unit of life. Cell can perform various functions like making new material, release of waste, transportation. Therefore, cell is a structural function unit. How can cell perform these functions? Just making of new materials, like chloroplast is making the food in plant. Chloroplast is the organ which make food because of chlorophyll. Release of waste is done by vacuoles. Transportation can be done by the cilia, flagella of the cells. So cell can perform many functions with the help of organelle. Therefore, cell is a structural functional unit. Okay, you will write, you will mention few functions. Now, how the substances like CO2 and oxygen can move in and out because of the diffusion. Okay, it's okay. Diffusion means
मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो CO2 जिस तरफ ज्यादा होगी वो दूसरी तरफ मूव करेगी जहाँ पे CO2 कम होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल क्यों मैं कहते हैं, बिकॉज वो कुछ चीजों को अंदर आने देती है और कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। ये प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इट्स कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल। परमेबल मींस पास, समथिंग दैट कैन पास। तो कुछ चीजें अंदर आ सकती हैं, पास हो सकती हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस, कुछ नहीं हो सकती है। क्लियर? क्लियर? If the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन टूट जाती है, ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं करे, क्वेश्चन इसलिए अभी कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर सेल वॉल ब्रेक हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए, तो व्हाट विल हैपन? सेल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन। सेल क्या नहीं कर पाएगा? बेसिक फंक्शन नहीं कर पाएगा और मर जाएगा आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइड बैग्स? लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? तो कोई बच्चा इसको रीड करके बताएगा आंसर which is written here. Why the lysosomes are called suicide bags? I want any one of you to read it. Answer. Yes, Anshika. Students which have joined, Harsh, Ayushman, Anshika Chaudhary. Read yes, the ma'am. why lysosomes are called suicide bags. Important question. मैम रीड करें? हाँ जी, रीड करिए. The lysosomes contain very powerful hydrolytic enzymes which are capable of breaking down organic matter. For example, when a cell gets damaged, then lysosomes burst and enzyme digest their own cell. Hence, the lysosomes are now as suicidal bags of cells. तो लाइसोसोम में बहुत पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि एबल है कि वो ऑर्गेनिक मैटर को, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर उनके अंदर अगर आ जाता है लाइसोसोम के अंदर, तो वो उनको ब्रेक कर देती है उस ऑर्गेनिक मैटर को, लाइसोसोम की एंजाइम। तो वो कुछ भी चीज को डाइजेस्ट करने के एबल है लाइसोसोम, इसीलिए उसे सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग। के उसके अंदर कुछ भी जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? इनसाइड द सेल्स। Who's going to read this? Next question. कहाँ पर बनते हैं प्रोटीन्स? राइबोसोम्स पे बनते हैं प्रोटीन। कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट, मेक अ कंपैरिजन, राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो यहाँ पर लाइंस में दिया हुआ है, प्लांट सेल की पहले पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर एनिमल सेल के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो प्लांट सेल के पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? यस, रीड। Cell wall is present outside the plant membrane, generally regular in shape, is larger in size than animal cells. Plastids are present, a permanent and large vacuole is present. Animal cell wall is absent, generally irregular in shape. तो पहले वाले का अपोजिट पॉइंट क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। सेकंड में जनरली रेगुलर है, बिकॉज सेल वॉल है तो होगी, तो प्लांट सेल क्या होगा? रेगुलर होगा। और एनिमल सेल क्या है? इरेगुलर। नेक्स्ट, irregular, थर्ड, स्मॉलर इन साइज। और एनिमल सेल स्मॉलर होगा और प्लांट सेल लार्जर होगा। Plastids are absent एक्सेप्ट इन यूग्लिना। सारे एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, बस एक एनिमल सेल है प्रोटिस्टा वाला जिसके अंदर यूग्लिना जिसका नाम दिया, उसमें बस प्लास्टिड होता है, क्योंकि वो लिंक है प्लांट और एनिमल का, इसलिए उसमें प्लास्टिड मिलता है। नेक्स्ट, वैक्यूल्स आर मेनी। छोटे छोटे होंगे एनिमल सेल में वैक्यूल, बट उसमें क्या होगा? परमानेंट और लार्ज वैक्यूल होगा। किसमें? प्लांट सेल। तो अगर हम इसको डायग्राम बना के देखें तो कैसे कर सकते हैं? प्लांट का और एनिमल का डायग्राम बनाए। मान लो मैंने यहाँ प्लांट सेल बनाया, तो एक पहली बात तो एक फिक्स शेप बनाऊंगी मैं प्लांट सेल की, यानी कि उसकी शेप बदल नहीं सकती। जैसे अगर मैं ये रेक्टेंगल जैसा बना रही हूँ तो वैसे बनेगी, और अगर एनिमल सेल की बना रही हूँ तो थोड़ी सी इरेगुलर होगी। पहला पॉइंट हो गया क्लियर कि सेल वॉल की वजह से उसकी क्या रहती है? फिक्स शेप रहती है, और एनिमल सेल की शेप फिक्स नहीं रहती। अब लार्ज साइज में लार्ज कौन होगा? प्लांट सेल विल बी लार्जर, एनिमल सेल विल बी स्मॉलर। तो उसको थोड़ा सा स्मॉलर बना लेते हैं। इसको थोड़ा स्मॉलर बना लिया। अब प्लास्टिड प्लांट सेल में क्या होगा? बड़ा सा, सॉरी वैक्यूल प्लांट सेल में सेंटर में रहेगा बड़ा सा, और इसमें वैक्यूल होंगे तो बहुत टाइनी टाइनी से छोटे छोटे से वैक्यूल, ठीक है? बहुत होंगे पर छोटे छोटे होंगे। इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, एक ग्रीन कलर की ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट, वो होगा। और उसमें नहीं होगा, बट उसमें एक एक्सेप्शन है, यूग्लिना, उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये हम यूग्लिना नहीं बना रहे, इसलिए हम इसमें प्लास्टिड नहीं बना रहे। फिर लार्ज वैक्यूल की बात कर दी, लार्ज एनिमल प्लांट सेल के साइज की बात कर दी। सारे पॉइंट्स हो गए, सारे पॉइंट्स इसके इस डायग्राम से क्लियर हो गए। बट बीच में इसका न्यूक्लियस कॉर्नर में होगा, यहाँ पर एक ब्लू कलर का न्यूक्लियस बना रहे हैं, इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर, ठीक है? क्योंकि क्यों हुआ कॉर्नर में? बिकॉज वैक्यूल की वजह से। जो मैंने ये रेड कलर का बड़ा सा पैकेट सा बनाया, ये क्या है? बिगर वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल। और इधर जो छोटे छोटे बनाए हैं ये छोटे वैक्यूल है, स्मॉल वैक्यूल, एस वैक्यूल्स यानी स्मॉल वैक्यूल्स। क्लियर? तो एनिमल प्लांट सेल के मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको एक चार्ट पेपर पे एनिमल प्लांट सेल का डायग्राम बना के और ये डिफरेंसेस लिखने हैं, याद भी करते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट? ये भी दिया था मैंने, या तो आप प्लांट और एनिमल बना सकते थे या प्रोकैरियोटिक बना सकते थे। तो बताइए क्या बनाया इसका? हाउ इज प्रोकैरियोटिक डिफरेंट? ये आपको किसमें दिया हुआ है? एनसीईआरटी में ही ब्लू क्वेश्चन के जो टेबल बना हुआ है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उसी का दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन नेक्स्ट क्या है, उसी टेबल को आप याद कर लेना। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा? इन केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर ब्रेकडाउन, सारी यूजफुल चीजें क्या हो जाएंगी? सेल के बाहर चली जाएंगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री है। There will be no difference between cell content and its external environment. सेल के कंटेंट मतलब सेल के अंदर जो चीजें हैं और बाहर की जो चीजें हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। सब सेल टूट गया, सब अंदर की चीज बाहर, बाहर की चीज अंदर होने लगी, तो सेल विल लूज इट नॉर्मल शेप। नॉर्मल शेप का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। What would happen if life of a cell if there is no Golgi apparatus? कोई Golgi apparatus नहीं होगी तो क्या होगा सेल का? पहली बात जो नहीं होगी वो है पैकिंग नहीं होगी किसी भी चीज की, ना होगी डिस्पैचिंग होगी। अलग अलग प्रोटीन की टारगेट जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे पहुंचना है प्रोटीन्स को। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड। उन्हें हम स्टोर करके भी नहीं रख पाएंगे, ना उन्हें मॉडिफाई कर सकते। फिर जब स्टोर ही नहीं किया तो उनको बदलेंगे क्या?
थर्ड पॉइंट, देयर विल बी इफेक्ट ऑन लाइसोसोम फॉर्मेशन। गोल्जी नहीं होंगी तो लाइसोसोम भी नहीं बनेंगे, गोल्जी के बाद ही लाइसोसोम आते हैं, गोल्जी से ही बनते हैं। दिस विल कॉज अक्यूमुलेशन ऑफ worn out और डेड ऑर्गेनेलीज। इसीलिए जो खराब चीजें होंगी वो सेल में वैसी की वैसी ही पड़ी रहेंगी, क्योंकि लाइसोसोम अब नहीं बनी है। सबसे पहले तो वेस्ट इकट्ठा होने लगेगा, वैक्यूल्स, फिर क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, गोल्जी apparatus, plastids। तो plastids। Which organelle is a powerhouse? Which organelle is called powerhouse of cell? और क्यों कहते हैं उसको powerhouse? So it is mitochondria। ये तो आपको याद होना चाहिए बेटा। Mitochondria is called powerhouse of the cell। Because क्यों कहते हैं इसे powerhouse? क्योंकि इसमें respiration होती है जिससे ATP बने, जिससे क्या बने, एनर्जी की करेंसी बने ATP। तो जब पावर की चीज बन रही है तो पावर हाउस हो गया ना, बिजली घर हो गया एक तरह से पावर हाउस, क्योंकि ये हमें क्या बना के दे रही है, एटीपी। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होती है? ये तो आपको पता ही है, हाइपोटोनिक, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। सॉल्वेंट का मूव होना फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्रीली अंदर या बाहर जा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन। और लास्ट क्वेश्चन है कि 4 आप आलू के कप लोगे ABCD और उन कप में अलग अलग चीजें रखोगे। पहले वाले कप को आप एम्प्टी रख रहे हो, दूसरे वाले कप में आप चीनी भर रहे हो 1 चम्मच, सॉल्ट B में, और C में आप सॉल्ट भर रहे हो 1 चम्मच, और 1 टीस्पून शुगर को D में रख रहे हो। पर वो बॉइल्ड कप है, कैसा कप है, बाकी सब रॉ है। ये सारा ऊपर के ABC क्या है, कच्चे कप है आलू के। तो क्या होगा, किसमें पानी भरेगा, किसमें पानी नहीं भरेगा? तो जो एम्प्टी कप है उसमें तो कुछ भी पानी नहीं भरेगा। 1 टीस्पून जिसमें शुगर भरी हुई है उसमें क्या होगा, उसमें बाहर से पानी अंदर आ जाएगा, पानी इसमें अक्यूमुलेट होगा। सॉल्ट वाले में भी पानी अक्यूमुलेट होगा, पर डी वाले में नहीं होगा, क्योंकि ये बॉइल्ड है तो इसके सेल्स क्या हो चुके हैं, डेड। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो आपको करना आना चाहिए क्वेश्चन। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, पहले बताएंगे ऑस्मोसिस क्या है। पानी का गैदर होना हॉलो पोर्शन में B और C में होगा, बाकी A और D में नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट शुगर हायर इनसाइड द कप एज कंपेयर टू वाटर व्हिच इज आउटसाइड। सॉल्ट ज्यादा है और पानी कम था, इसलिए पानी बाहर से कहाँ आ गया, अंदर आ गया, इनसाइड द कप आ गया। चीनी और नमक वालों में पानी अंदर आ जाता है। पोटैटो ए एक्ट एज अ कंट्रोल ऑफ द experiment. This is required for comparing the result of experiment. Water does not gather into hollowed portion of A and B because of the following reason. Water किसमें A और D में क्यों नहीं gather हुआ? Hollowed portion 9th. The hollowed portion of a potato A is empty. इसके बाद L है. So because of no concentration difference, no osmosis can की concentration different नहीं थी, उसके अंदर कुछ भरा ही नहीं था A वाले में, तो क्या होगा, उसमें कोई भी osmosis। The hollowed portion of potato D contains sugar but it is not, it is boiled। उसमें शुगर तो डाली थी डी वाले में, बट वो कैसा कप था, बॉइल्ड। तो इस वजह से इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, डिस्ट्रॉय हो गई, उन सेल्स की सेमी परमेबल खत्म, तो ऑस्मोसिस भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑस्मोसिस तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। डेड सेल बन जाएगा। और ऑस्मोसिस क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है, तो अब इसमें तो सेल्स नहीं है, डेड सेल हो चुके हैं, तो इसीलिए ऑस्मोसिस भी नहीं होती डी वाले में। और ए वाले में क्यों नहीं होती, क्योंकि ए वाला एम्प्टी है, खाली है, उसके अंदर हमने कोई नमक और या फिर चीनी नहीं डाली है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट्स, बाय। सेकंड पीरियड अभी चल
देखने के चार्जिंग नहीं आ रही भाई, देखो ना कहीं नहीं, इसमें तो नहीं आ रही चार्जिंग। नहीं, यहाँ आ रही चार्ज होते, देखो ना वहां से दोबारा लगा, लग रहा है ढीला हो रहा। आ गई आ गई। Beta, now the second period is over. You have to attend the third period. Whatever teacher is teaching you, please attend the third period. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. I hope कोई confusion तो नहीं होगा आपको। कोई doubt है, कोई question तो पूछ लो। कोई doubt, कोई question, बेटा? Are you having? No, ma'am. So I am ending the class. Prepare chapter 5 for your competitive test. Ma'am. Yes. Ma'am, can you explain about plasmolysis? प्लाज्मोलिसिस ऑस्मोसिस का एक्सट्रीम ऑस्मोसिस अगर हो जाए, सेल में से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी ब्रेक हो जाए, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है? तो प्लाज्मोलिसिस में जब कोई भी आप सेल लेते हो, जैसे आप यहाँ पर एक सेल ले रहे हो और फिर सेल के अंदर सेल को आपने एक बीकर में रख दिया है, जिस बीकर में सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है, और ऐसे सेल को हमने प्लांट सेल को लिया है, सेल वॉल है और अंदर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, पर जैसे ही बाहर सॉल्ट के अंदर आप रखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से बाहर पानी निकल जाएगा, वैक्यूल में से भी, जो प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होगा उसका पानी भी बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म का पानी भी बाहर निकलेगा। तो वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा क्योंकि इन्वायरमेंट में सॉल्ट है। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे अगर इसको, तो बीकर में जो सॉल्ट था उसकी वजह से जो प्लांट सेल है, सेल का साइज उतना ही रहा पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ के पूरी ऐसी हो गई, पिचक गई पूरी, वैक्यूल भी पूरा पतला हो गया, सब चीजें एक तरफ हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है बिकॉज वाटर बाहर मूव कर गया है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है? बिकॉज Okay, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am.